بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ناول ہے سن سیاں، قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے مدیحہ سید نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ویورز کامنٹ باکس میں ہمیں یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ پری، کیا بات ہے بیٹا، پریشان لگ رہی ہو؟ ناشتے کی میز پر اسے کارن فلیکس میں بے دلی سے چمچ گھماتے دیکھ کر سفینہ نے نرمی سے پوچھا تو اس نے ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ کیا بتاتی کہ کچھ دھندلی یادوں نے اس کا ذہنی سکون برہم برہم کر رکھا ہے۔ کچھ ناشناسا چہرے، دھندلے عکس اسے سونے نہیں دیتے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ کیا تعلق ہے دونوں کے بیچ؟ وہ گرداب میں پھنس چکی تھی۔ ماں سے پوچھنے کا مطلب اس کی ناراضی تھی، اور وہ ماں کو خفا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان لوگوں کے لیے تو قطعی نہیں جنہوں نے انہیں اتنی تکلیف دی تھی۔ آپ جانتی ہیں، چند دن قبل ہم لوگوں نے سیف الملوک کا انٹرویو کیا تھا۔ سفینہ نے چونک کر اسے دیکھا، چائے کا کپ واپس رکھتے پوری توجہ سے بیٹی کو دیکھا۔ تو وہ انسان بہت مغرور اور گھمنڈی ہے مما، اس کے لہجے سے جھلکتی خفگی نے سفینہ کو قدرے پرسکون کیا۔ آپ کو معلوم ہے اس نے انٹرویو شائع ہونے سے رکوا دیا؟ ایسا کیا کیا تھا اس انٹرویو میں؟ کچھ خاص تو نہیں، بس اس نے رکوا دیا، شاید میری وجہ سے۔ تمہاری وجہ سے کیسے؟ سفینہ کا دل دھڑکا۔ کچھ کہا اس نے تمہارے متعلق؟ کہے گا تو تب جب اس سے کسی بات سے کوئی فرق پڑتا ہو۔ وہ تو بس اپنی سناتا ہے، تم دور رہنا اس سے۔ پریسا کو اٹھتے دیکھ کر سفینہ نے کہا تو وہ مسکرائی۔ وہ کوئی فارغ انسان نہیں ہے مما کہ کسی بھی وقت کسی سے بھی مل لے گا۔ سوری مما، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ آج اپنے آفس میں ہی ہوگا، اور مجھے اس سے ملنا بھی ہے اور اس کی خوش فہمی بھی دور کرنی ہے۔ شاندار آفس میں شیشے کی وسیع میز کے پیچھے پاور سیٹ پر پین انگلیوں میں گھماتے، گہرے پینٹ آف وائٹ شرٹ، ہلکی سی شیب میں وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا جوان غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے نہ جانے کن سوچوں میں تھا کہ مخصوص رنگ ٹون پر لبوں کو مسکان چھو گئی۔ قلم میز پر رکھتے سیل اسکرین پر پرنسس جگمگاتا دیکھ کر کال اٹھا لی۔ السلام علیکم، محبت سے بھرپور لہجہ تھا۔ وعلیکم السلام، خانی بات کر رہی ہوں، سیف الملوک صاحب سے بات کروائیں، ایک ادا سے کہا گیا۔ جملہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ جی خانی صاحبہ، سیف الملوک بات کر رہا ہوں۔ اوپس، خانی نے سر پر چپت لگاتے تعصب کا اظہار کیا۔ سیف اس کے انداز سے جی بھر کے محظوظ ہوا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ فائن، بٹ آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے سے اداسی جھلکی۔ میں بھی آپ کو مس کر رہا ہوں، زندگی۔ تو آپ ہم سے ملنے آ جائیں نا، لاڈ سے فرمائش کی گئی۔ شہری چاچو بہت تنگ کرتے ہیں، آپ انہیں ڈانٹیں۔ خانی نے منہ بناتے شکایت کی۔ میں آؤں گا نا تو ہم چاچو کی پٹائی کریں گے۔ وہ کیوں تنگ کرتے ہیں پرنسس کو؟ تبھی گلاس ڈور دھکیلتے پریسا کو اندر آتے دیکھ کر وہ لمحے کے لیے چپ ہوا، اور پیے کو واپس جانے کا اشارہ اور پریسا کو ایک سخت گھوری سے نوازتے بیٹھنے کو کہا۔ کب آئیں گے آپ؟ خانی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ کل انشاءاللہ۔ اس نے کرسی گھمائی۔ اب وہ سائڈ پوسٹ سے پریسا کے سامنے تھا، بائیں ہاتھ سے پیپر ویٹ گھماتے وہ غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وعدہ کریں آئیں گے؟ سیف خانی کے انداز پر مسکرایا۔ غصہ اڑن چھو ہوا۔ اتنی بے اعتباری اچھی نہیں ہوتی پرنسس۔ پریسا نے اس کے لہجے سے چھلکتی محبت اور نرمی کی شدت محسوس کرتے بے ساختہ اس کا وجیح چہرہ دیکھا، جہاں پھیلا نرم سا تاثر بھلا لگ رہا تھا۔ وعدہ، آؤں گا۔ ایک اور وعدہ بھی کریں۔ جی بولیں۔ اب کون سا وعدہ کروں؟ اس نے وقت دیکھا۔ 15 منٹ بعد اسے میٹنگ میں جانا تھا۔ آپ ہماری طرف آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ آؤں گی آپ کے گھر، لیکن میں تو گھر پر صرف رات کو ہوتا ہوں۔ آپ اکیلے کیا کریں گی اتنے بڑے گھر میں؟ کوٹ پہنے نرمی سے کہا۔ پریسا نے حیرت سے اس کا انداز دیکھا جو اسے بری طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ سمجھا کریں نا چاچو۔ خانی کے رازدارانہ انداز پر وہ مسکرایا۔ آپ سمجھا دیں نا زندگی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ایکچولی میں وہاں آؤں گی تو چاچی ڈھونڈوں گی۔ خانی کی بات پر ایک پل کے لیے سیف کے کف موڑتے ہاتھ ٹھٹکے۔
निगाह बेसाख्ता सामने मोमी गुड़िया की जानी उठी, फिर एकदम हंस दिया। जैसा आप चाहें प्रिंसेस, अभी चाचू को मीटिंग अटेंड करनी है, रात में बात करते हैं। वो कुर्सी के पीछे से निकलते परीसा को नज़रअंदाज करते दरवाजे की जानिब बढ़ा। तभी परीसा उजलत में इसके सामने आई। सैफ ने इसे घूरा। ये कौन सा तरीका है रास्ता रोकने का? और जो आप कर रहे हैं ये भी कोई तरीका नहीं, मेहमान को नज़रअंदाज करना। मेहमान? सैफ ने 2 कदम पीछे हटते इसका जायज़ा लिया। सफ़ेद ट्राउज़र और मेहंदी रंग शर्ट के साथ हम रंग दुपट्टा मफलर की तरह लपेटे तो इसके सामने बच्ची लगती थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप मेहमान हैं, ज़बरदस्ती ऑफिस आई हैं। सोचें अगर स्टाफ आपके साथ मिसबिहेव करता तो? परी का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ। बहुत खूबसूरत। सैफ के दिल ने चुपके से एतराफ़ किया। सॉरी, मगर मुझे बात करनी थी आपसे। अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर बात करेंगे। मगर मुझे अभी करनी है बात। वो बज़िद हुई। सैफ ने अब्रू सुकेड़े। आपकी साख के तहत मुझ पर रोब जमाने की कोशिश कर रही हैं सहाफ़ी। परीसा को एकदम गलती का एहसास हुआ। वो भला सैफ पर किस हक़ से रोब डाल रही थी? हटिए रास्ते से, मुझे देर हो रही है। फिर कभी बात सुन लूँगा आपकी। आप मेरी बात सुने बिना नहीं जा सकते। सैफ के बढ़ते कदम इसके दुरुस्त लहजे पर ठिठके। दिमाग एकदम आउट हुआ। इन्हीं कदमों पर पलटे परीसा के दोनों बाजू अपनी जाहराना गिरफ्त में लेते करीब किया कि इनके बीच महज चंद इंच का फासला था। परी का चेहरा इस कुर्बत पर सुर्ख, जबकि धड़कनें सरपट हो गई थी। अगर मैं चाहूँ तो ये चंद इंच की दूरी सेकंड में मिटा दूँ, मगर सैफुल मलूक इतना कमज़ोर इंसान नहीं। इसकी लरजती पलकों, नम पेशानी को देखते सैफ का लहजा नरम हुआ। आइंदा यूँ मेरे रूबरू मुझ पर हक मत जताना। मैं हक जताने पर आया तो मुश्किल हो जाएगी। इसके बाजू छोड़कर 2 कदम पीछे हटा। आइंदा मेरे आस पास नज़र मत आना मिस सहाफ़ी, वरना नताइज का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। सुना है महरोज शजात आज अपने दोस्तों का मुंह मीठा करवा रहा है। रोमिया ने सफ़ीना के करीब बैठते मुतल्ला किया, जिसने एक के बाद दूसरी निगाह रोमिया पर नहीं डाली थी। तुम पूछोगी नहीं वो क्यों मुंह मीठा करा रहा है? अंदाज खोजता हुआ था। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इसकी खुशफहमी से? सफ़ीना ने बेनियाजी से शाने उचकाए। इसकी निगाह गैर इरादी तौर पर बाईं जानिब महरोज की जानिब उठी, जिसका चेहरा खुशी के भरपूर एहसास से जगमगा रहा था। तुम्हारी हंसी को बर्बाद होने में बहुत कम वक्त है। जी लो ये पल। सुनो फराज। रोमिया की पुकार पर सफ़ीना ने चौंक कर इनकी जानिब देखा। महरोज मिठाई किस खुशी में खिला रहा है? इसके यहाँ बेबी आया है, फराज ने नरमी से बताया। बेबी? रोमिया ने पुरसोच निगाहों से महरोज के बाद सफ़ीना को देखा। किसका बेबी होगा? मुझे क्या मालूम, इसने शाने उचकाए। होगा भांजा भतीजा। सुनो मैं चंद दिन तक यूँ नहीं आ सकूँगी। क्यों, खैरियत? मामू आ रहे हैं। बेमा फैमिली इसलिए। इसके वालिदैन की डेथ हो चुकी थी। वो अपने नाना के पास रहती थी जो रिटायर्ड जज थे। मैं तुम्हें मिस करूँगी सफ़ीना। रूमिया ने इसका हाथ हाथों में लिया तो मुस्कुरा दी। मैं इसीलिए तुम्हारे इस प्रोफेशन के ख़िलाफ़ थी। वादे के मुताबिक सैफ मलूक गाँव आया था जब कासिम ने खफगी से कहा। खानी और यावर इसके दाएं बाएं बैठे थे। ममा, बाबा, चाची, चाचू सभी मौजूद थे, जबकि वो पिछले 10 मिनट से बाप के बाद अब भाई की डांट नहायत ताबेदारी से सर झुकाए सुन रहा था। चेहरे पर नरम सा तासुर फैला था। वो कहीं से अक्खड़ मगरूर इंसान नहीं लग रहा था, जैसा कि वो जाना जाता था। इतने दिनों तक शक्ल भी नहीं दिखाते। मैं खुद सोच रहा हूँ मुस्ताफ़ी हो जाऊँ, सैफ ने संजीदगी से कहते इन्हें हैरान कर दिया। सभी की निगाहें इसकी जानिब उठी। तुम सच कह रहे हो? माँ भाभी ने बेयकीनी से पूछा। जी सच, मगर अभी 1 डेढ़ बरस नहीं। सुनो, तुम इसे क्यों नहीं ढूंढते बेटा? बाबा के कहने पर सैफ ने इन्हें देखा। ढूंढा तो नहीं इन्हें जाता है जो खो जाए। वो तो मेरे सामने है। अगर मैं चाहूँ तो अगले 10 मिनट में इसे यहाँ ले आऊँ, शान अंदाज में कहते सबको देखा जो बाकायदा इसे घूर रहे थे। अब ऐसे देखने का क्या मतलब है? इसने मसनूई डरने की अदाकारी की। कासिम ने मोबाइल से खींच कर मारा, जो सैफुल मलूक ने महारत से कैच कर लिया। हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे मालूम था आप लोग इसे यहाँ लाने के लिए इसरार करेंगे, जबकि मैं मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाँ, कोई भी मुझे फोर्स नहीं करेगा। अगले रोज़ वह ऑफिस में बैठा फाइल देख रहा था। सामने एलईडी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव कवरेज चल रही थी। वॉल्यूम म्यूट था। पी अंदर दाखिल हुई। एक नज़र सैफ की मसरूफियत फिर टीवी स्क्रीन को
थी जहाँ इनकी पार्टी रुकन कॉन्फ्रेंस कर रही थी। सर वॉल्यूम खोल दूँ क्यों? इसने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ पर निगाह उठाई जहाँ वो गाजी रंग के शॉर्ट फ्रॉक पजामे में मलबूस सारी दुनिया से बेजार नज़र आ रही थी। सवाल यह है कि आपके एम.एन.ए. साहब कोई आला अरफा हस्ती तो नहीं, बस हम जैसे आम इंसान ही हैं, तो वो इतने मगरूर क्यों हैं? इस सवाल पर जहाँ पार्टी रुकन ने हैरत और बेयकीनी से इसे देखा, सैफ ने स्क्रीन को देखा, जबकि पीए ने भी परीसा को घूर कर देखा। सर ये सहाफ़ी तो आपके पीछे ही पड़ गई है। इसने फिर से इसे हसीन मगर रूठ सी लड़की को घूरा जो इनके डिसेंट से बॉस के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। और जिस दिन मैं इसके पीछे पड़ गया ये रोएगी। सैफ ने सोचते हुए पीए को जाने का इशारा करते सैल उठाकर साफ़ी के नाम पर क्लिक किया। शायद दूसरी जानिब इसी कॉल का इंतज़ार था। पहली बेल पर कॉल रिसीव हो गई। ओह एम.एन.ए. साहब, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? आप मुझे कॉल कर रहे हैं, वो भी अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर। और इस वक्त तो रात के 12 भी नहीं बजे। सैफ ने तहम्मुल से इसकी गुफ्तगू सुनी, फिर संजीदगी से गोया हुआ, अगर कह चुकी हैं तो मेरी भी सुन लें। जी जी बिल्कुल, हम बेचारे अवाम आप ही की तो सुनने के लिए बैठे हैं। आइंदा मुझे तुम इस बेहुदा ड्रेसिंग में नज़र नहीं आओगी। परीसा ने सैल कान से हटाकर चंबे से स्क्रीन के बाद सर से पाँव तक खुद को देखा। ज़हन नशीन कर लो ये बात, आइंदा अगर तुम मुझे ऐसे हुलिये में नज़र आई तो नताइज की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। एक्सक्यूज़ मी एम.एन.ए. साहब, एम.एन.ए. आम आवाम के लिए मैं हूँ और तुम्हारे लिए आज के बाद साईं। क्या मतलब? इसने चंबे से पूछा। मतलब आइंदा जब भी बात होगी तुम मुझे साईं पुकारोगी। अल्लाह हाफिज़। ये सर शुजात अल्लाह साहब की हवेली के दरो दीवार अपने मकीनों की तरह हैरान और साकित थे कि अपने सामने बैठी फालसे रंग की फ्रॉक में नाजुक सी खूबसूरत लड़की जिसकी आंखें नम थी वो ना समझने वाली कैफियत में देख रहे थे। सामने शीशे की मेज़ पर खाकी लिफाफे में बंद तस्वीरें थीं जिन्हें एक के बाद दूसरी नज़र नहीं देखा गया था। महरोज शुजात ने इस लड़की के साथ धोखाधड़ी की थी। शुजात अल्लाह ये मानने से इनकारी थे, मगर कोई लड़की अपनी इज्जत खुद कैसे दांव पर लगा सकती है? वो महरज को कॉल कर चुके थे और 10 मिनट में पहुंचने वाला था। और जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ माँ बाप के अलावा भाभी, भाई और पांचों वजूद को देखकर इन्हें कदमों पर थम गया। इसका यूं थम जाना इसके लिए आजमाइश बन गया। शुजात झटके से खड़े हुए। महरोज के पीछे ही एक गंदुमी रंगत थोड़ी सी फरबे लड़की बच्चे को गोद में लिया अजनबी चेहरे को देख रही थी। महरोज, तुम जानते हो इस लड़की को? बाप का इशारा सफ़ीना की जानिब देखते इसका सर इस बात में हिला तो शुजात अल्लाह साहब ने वो तस्वीर इसके मुंह पर मारी जो इसके चेहरे से टकराती कदमों में बिखर गईं और महरोज के साथ शारिका के कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। तुम इस कदर घटिया होगे मुझे हरगिज़ अंदाज़ा ना था। मेरा खून, मेरी तरबियत इस कदर गलीज़ नहीं हो सकती। बाबा साईं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। महरोज ने तड़प कर इसकी जानिब कदम बढ़ाए, मगर शुजात अल्लाह साहब ने हाथ उठा के इसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। मेरा यकीन करें बाबा साईं, वो रुहानसा हुआ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। महरोज शुजात बीवी और बच्चे के होते हुए ऐसी नीच हरकत करते। सफ़ीना का चेहरा अंदरूनी मुसरत से जगमगा रहा था, मगर बीवी बेटे के जिक्र पर चौंक कर इसने बेयकीन खड़ी प्यारी सी लड़की को देखा जिसकी गोद में नन्हा सा बच्चा था। उफ, महरोज शादीशुदा था। वो कराही, गलती तुमने की है और इसे सुधारोगे भी तुम। दिलावर, शुजात महरोज से कहते बड़े बेटे की जानिब मुतवज्जा हुए। जी बाबा साईं, बेटी से इसके घर का पता लो और इनके सरपरस्तों को लेकर यहाँ आओ। शाम को महरोज का निकाह है। इनके फैसले पर वहाँ मौजूद सभी लोगों पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा, जबकि सफ़ीना का वजूद जल्जलों की जद में था। ऐसा कुछ होगा ये तो इसके वहम व गुमान में भी ना था। हारून साहब की मिन्नत समाजित के बाद सैफ एक बार फिर से इंटरव्यू के लिए अम्मान गया था। अब परीसा आज हारून साहब की फरमाइश पर लाइट से मेकअप व ज्वेलरी में आम रूटीन की निस्बत बहुत प्यारी लग रही थी। और इस बार वो लोग सैफुल मलूक के घर में मौजूद थे। तकरीबन 15 मिनट इंतज़ार के बाद सैफ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। वो ग्रे सूट में मलबूस था, जबकि अंदर दाखिल होते ही इसकी निगाह परीसा की जानिब उठी। ये नेवी ब्लू शर्ट पर सफ़ेद धागों से हल्की सी कढ़ाई थी। कानों में हम रंग नन्हे आवीज़े लंबे बाल और हाफ कैचर में बंधे थे।
लाइट मेकअप में वो माज के साथ सोफे पर बैठी थी। इनके बीच फासला मौजूद था, मगर सैफ का खून खौल उठा। अस्सलाम वालेकुम, संजीदगी से कहते अपनी जानिब मुतवज्जा किया तो दोनों इसकी जानिब मुतवज्जा हुए, जो मुलाजमा से माज को चाय सर्व करने को कह रहा था। परीसा और माज ने बगौर इसका सख्त अंदाज देखा। मुलाजमा माज को सर्व करके सैफ के इशारे पर बाहर निकल गई, जबकि परीसा का चेहरा तज़ीक के एहसास से सुर्ख हुआ। माज बेचारा हक्का बक्का बैठा बारी बारी दोनों को देख रहा था। चाय पीजिए, माज सैफ से संजीदगी से कहा तो इसने उजरत में चाय ख़त्म करके कप वापस रखा। अब आप जा सकते हैं। सैफ के संजीदा अंदाज पर माज के साथ परीसा भी सुर्ख चेहरा लिए खड़ी हुई। मिस सहाफ़ी, आप नहीं जाएंगी। सैफ उठ कर इसके मुकाबिल आया। माज ने हैरत पर, जबकि परीसा ने बेयकीनी से इसका दोस्त भरा अंदाज देखा, जिसने माज का चेहरा फोकस किया हुआ था। और मेरा पैगाम अपने हारून साहब को दे देना। इसने जो मेरी बीवी को बतौर चारा मेरे सामने पेश किया है, इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। अब आप जा सकते हैं। माज को शिद्दत देखकर इसका लहजा इंतहाई सख्त हुआ तो माज बुखला कर भागा। ये क्या बेहुदा बात की है आपने। परीसा के चंद लम्हे लगे थे सिमलने में। निकाह बेहुदा नहीं होता वाइफ, इसे जुटलाने वाले बेहुदा होते हैं। सैफ को अपनी जानिब बढ़ते देखकर परीसा ने बुखला कर पीछे हटना चाहा, मगर सैफ ने सुरात से इसकी कलाई थाम कर सामने किया। वो लड़खड़ा कर इसके मुकाबिल आई। मना किया था तुम आइंदा लड़कियों की तरह ड्रेसिंग करोगी, मगर तुम्हें मेरी बातें समझ में कहाँ आती हैं। परीसा का खौफ से जर्द चेहरा देखते सैफ ने नरम लहजा अपनाया, लेकिन खैर, अब मेरे साथ रहोगी, सब सीख जाओगी। इसने हाथ से इसकी लट कान के पीछे की। परीसा तड़प कर मचली। डोंट टच मी, मैं नहीं मानती आपकी बात, झूठ है ये। अगर हमारा निकाह हुआ होता तो मुझे इल्म होता, नहीं रहना मुझे यहाँ। इसने तुम नम से लहजे में कहती कलाई छुड़वाना चाहिए, मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। सैफ ने दूसरे हाथ से सेल निकालते चंद बटन दबाते स्क्रीन पर परीसा के सामने की, जिसकी निगाहें निकाहनामा पर जम गई थी। तभी सैफ के सेल पर कॉल आ गई। इसने फौरी रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम, मुसलसल मज़ाहमत करती परीसा की कलाई मजबूती से थामते हुए संजीदगी से बोला, वालेकुम अस्सलाम चाचू, मुझे शहर आना है। खाने की फरमाइश पर मुस्कुराया। क्यों मेरा बच्चा। परीसा ने मज़ाहमत तर्क करते इसे फैमिली मेम्बर से बात करते देखकर चिल्लाना चाहा, मगर वो जो पूरी तरह मुतवज्जा था, फौरी इसके मुंह पर हथेली जमाते आवाज़ का गला घोंटा। मैं बोर हो रही हूँ ना चाचू, आपसे मिलना है। फ़िलहाल नहीं मेरा बेटा, आप शहरी चाचू के साथ खेलो ना, और भाई के साथ। परीसा ने दांत इसकी हथेली पर गाड़े। जैसे दांत पर दांत जमाते परीसा को घुमाकर इसके चेहरा अपने सीने में भींच लिया। मैं अभी चाचू को कॉल करता हूँ, वो आपको बाहर ले जाएंगे। थैंक्स चाचू, खानी चहकी। मोस्ट वेलकम मेरा बच्चा, मोहब्बत से कहते काल काटते अपनी मजबूत गिरफ्त में नाजुक से सरापे को देखते इसका चेहरा सामने किया, जो पसीना पसीना हो रहा था। पलकें लरज रही थी। तुम तो बिल्कुल जंगली हो, इतनी ज़ोर से काटते हैं। इसकी गैर होती हालत देखते कज़न लहजा नॉर्मल किया और हथेली सामने फैलाई, दांतों के निशान थे। चलो अब आराम करो। इसका चेहरा थपथपाया। मुझे जाना है। परीसा ने पलके उठाते कपकपाते लहजे में कहा, यहाँ से जाने के बारे में तो सोचना भी मत। सैफ ने संजीदगी से कहते इसका मफलर की तरह लिपटा दुपट्टा उतारा। परीसा ने खौफ से इसका चेहरा देखा, जो अब दुपट्टा फैला के इसके सर पर उड़ा रहा था। देखो ऐसे दुपट्टा लेती कितनी प्यारी लग रही हो। इसने परीसा का रुख कद आदम आईने की जानिब मोड़ा, जहाँ दोनों पास खड़े मुकम्मिल लग रहे थे। मुझे मामा से बात करनी है। परीसा ने फौरन आईने से निगाह हटाई। तो कर लो ना, मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन इस घर से बाहर निकलने की सोचना भी मत। अभी मुझे जाना है, मुलाजमा तुम्हें घर दिखा देगी। सफ़ीना को रत्ती बराबर यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इसके साथ क्या वार कर गई। महरोज़ इसकी मज़ाहमत की परवाह किए बगैर शुजाअतुल्लाह ने इसके नाना को बुलवा कर दोनों का निकाह पढ़वा दिया था। 3 माह गुजर चुके थे इनके निकाह को। शारिका, जो महरोज़ की तायाजाद कज़न थी, इससे महरोज़ ने पसंद से शादी की थी। कासिम 4 माह का हो गया था। शारिका के लबों पर गोया कफल लग गया था। वो बस रोबोट के मानिंद अपने अमूर सरअंजाम देती रहती, जबकि सफ़ीना ने इसका जीना हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसने हर तरह से हवेली वालों को ज़िद करने की कोशिश की थी, मगर वो लोग भी जाने किस मिट्टी से बने थे कि कोई रद्द अमल ही न दिखाते थे। इस रोज़ दिलावर और महरोज़ घर वापस आए
तो निगाह बेसाख्ता सामने किचन से चाय लाती शारिका पर पड़ी, जो अपने ही ध्यान में थी। जबकि सफीना ने नफरत से इसका चेहरा देखा, जिसे महरोज इतनी मोहब्बत, चाहत और आंखों में चमक लिए देखता था। ऐसा भी क्या था इस आम से चेहरे में? वो जाहराना शारिका की जानिब बढ़ी। महरोज इसका इरादा भांपते तेज कदमों से इसकी जानिब बढ़ा, मगर सफीना ने जानबूझकर हाथ मारते चाय की ट्रे गिराई, जो शारिका के हाथ पहुंच झुलसा गई। शारिका! महरोज ने सफीना को धकेलते शारिका की तकलीफ की शिद्दत से सुस्त चेहरा हाथों में लिया। महरोज ने मुलाजमा को फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहते शारिका को बिठाया, जबकि सफीना नफरत भरी निगाह इन तीनों पर डालती पाँव पटकती कमरे में चली गई। क्या मसला है तुम्हारे साथ? खाना क्यों नहीं खा रही तुम? सैफ जाहराना अंदाज में दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो कल से भूखी प्यासी पड़ी थी। मुलाजमा के बताने पर इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। परिसा इसकी आवाज़ सुनते ही झटके से सीधी हुई। शदीद गिरियाजारी से सुर्ख सूजी आंखें, बिखरे बाल। सैफ को बेसाख्ता तरस आया, मगर हमदर्दी जताने का मतलब था। आ बैल मुझे मार, मैं नहीं मानती इस निकाह को। परिसा इसके मुकाबिल खड़ी हुई। तो ठीक है, कल दोबारा निकाह पढ़वा लेते हैं, सैफ मुतमईन अंदाज में बोला। मुझे नहीं रहना आपके साथ। इसने बेदर्दी से चेहरा रगड़ा। रहना तो पड़ेगा, हंस कर रो या रो कर, तुम्हारी मर्जी है। सैफ ने बेनियाजी से शाने उचकाए। सैफ प्लीज़। वो मुलतजी हुई तो इसने लब भींचते इसकी हालत देखी। मुझे मामा के पास जाना है, वो नाराज़ है मुझसे, बात भी नहीं कर रही। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। सैफ ने नरमी और मोहब्बत से इसका चेहरा हाथों के प्याले में समेटा। देखो सहाफ़ी, तुम ऐसी कमज़ोर लोगों की तरह रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम पर तुम्हारा पुराना अंदाज अच्छा लगता है। तुम अच्छी नहीं लगती तो मैं अच्छी नहीं लगती तो जाने देना मुझे यहाँ से, नम आँखों में लहजे में कहते सैफ के हाथों में हाथ रखे। अंदाज इस कदर मासूमाना था कि सैफ ने बेसाख्ता झट झुके इसकी पेशानी चूमी। पैसा इसकी हरकत पर सटपटा कर पीछे हटी। चेहरा हया से गुलाबी हुआ। आइंदा जब भी रोगी ऐसा ही होगा। फैसला तुम्हारा है, चाहो तो डट कर मुकाबला करो या रो कर मुझे करीब आने का मौका दो। सैफ 2 कदम इसकी जानिब बढ़ा। मैं नहीं डरती आपसे। गुड, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम डरो मत। अब जल्दी से फ्रेश हो, फिर खाना खाते हैं, भूख लगी रही है। नरमी से गाल थपथपाया। मैं बता रही हूँ आपको, भाग जाऊंगी मैं यहाँ से। परिसा की बचकाना धमकी पर सैफ ने मुस्कुराहट दबाई। इजाज़त है, अगर भाग सकती हो तो भाग जाओ। रियली? परिसा ने हैरत और बेयकीनी से इसका चेहरा देखा, जो सर खम करते पीछे हट गया था। तुम्हें अंदाज़ा भी है क्या किया है तुमने? शारिका को दवाएं देते महरोज जाहराना अंदाज में दरवाज़ा धकेलते अंदर दाखिल होकर दहाड़ा। सफीना जो औंधे मुँह बेड पर लेटी थी, झटके से सीधी हुई। महरोज का वजीह चेहरा ज़ब्त से सुर्ख था। क्या किया मैंने? महरोज ने आगे बढ़कर इसे बाजू से दबोचते सामने खड़ा किया। इतनी ही मासूम हो ना तुम, जिसे अंदाज़ा ही नहीं कि आखिर इसने क्या किया है। मासूम तो मैं हरगिज़ नहीं हूँ महरोज शुजात। इसने हाथ झटके इस सजाई अंदाज में कहा। मासूम फरिश्ता तो वो तुम्हारी शारिका बीवी है, जिसके तुम दीवाने हो। शट अप, नाम मत लो इसका, महरोज चिल्लाया। क्यों ना लूँ? सफीना भी तू बतू चिल्लाई। वही घटिया लड़की है ना जिसकी वजह से मुझे इग्नोर करते हो। अपने गिरेबान में झांको और ईमानदारी से फैसला करो सफीना, कि दरअसल घटिया कौन है। घटिया तुम हो महरोज, और तुम्हारी वो चाहिए थी मासूम फरिश्ता। इनके झगड़े की आवाज़ बाहर तक जा रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महरोज ने आगे बढ़ते दरवाज़ा खोला। महरोज, बाबा साईं बुला रहे हैं। दरवाजे की चौखट पर खड़ी भाभी ने एक नफरत भरी कटीली निगाह इस खूबसूरत चुड़ैल पर डाली। महरोज, तुम क्या चाहते हो? शुजात के सवाल पर इसने लब भींचे, मगर बोला कुछ नहीं। हमारी तरफ से इजाज़त है। तुम इस लड़की को रखना चाहो या छोड़ना, तुम्हारी मर्जी। महरोज ने बेसाख्ता इनका चेहरा देखा। मुझे अव्वल रोज़ से तुम पर एतबार था। महरोज ने बेयकीनी से इनका चेहरा देखा, मगर मुझसे इस लड़की को परखने में भूल हो गई। वो बेटी है, घर चल कर आई तो मुझे लगा शायद इसे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए अपनी इज्जत दांव पर लगाई। मगर ये तो अब मालूम हुआ कि ये तो जिद और अना का खेल था। तुम आज़ाद हो, फैसले में हमारी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं होगा।